یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلینفیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 5 مارچ 2023 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: انسان۔ سنہری متن: زبور، جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے۔ جوابی مطالعہ: متی: مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ پس جب کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ درسی واز بائبل میں سے۔ پیدائش: خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپائوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اور خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے۔ زبور: اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا۔ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے، اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے، تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے۔ زبور: مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ دیکھو ایسی برکت اس آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ تیموتھیوس: دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے، کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں۔ بس اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے تو اسی پر قناعت کریں۔ یوحنا: یسوع نے کہا، یوحنا: تمہاری خوشی کوئی تم سے چھین نہ لے گا، اس لیے کہ باپ تو آپ ہی تم کو عزیز رکھتا ہے، کیونکہ تم نے مجھ کو عزیز رکھا ہے اور ایمان لائے ہو کہ میں باپ کی طرف سے نکلا ہوں۔ دیکھو وہ گھڑی آتی ہے، بلکہ آ پہنچی، کہ تم سب پراگندہ ہو کر اپنے اپنے گھر کی راہ لوگے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو گے۔ تو بھی میں اکیلا نہیں ہوں، کیونکہ باپ میرے ساتھ ہے۔ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ یوحنا: یسوع نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے باپ،
वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। चुनाचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है, ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सबको हमेशा की ज़िंदगी दे। और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और ये सुमसी को जिससे तूने भेजा है जाने। अमाल। और लुस्त्रा में एक शख्स बैठा था जो पांव से लाचार था। वो जन्म का लंगड़ा था और कभी ना चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था, और जब उसने उसकी तरफ गौर करके देखा कि उसमें शिफा पाने के लायक ईमान है, तो बड़ी आवाज से कहा, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो जा। बस वो उछल कर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकानिया की बोली में बुलंद आवाज से कहा कि आदमियों की सूरत में देवता हमारे पास उतर कर आए हैं। और उन्होंने बरनबास को ज्यूस कहा और पौलुस को हरमेस, इसलिए कि ये कलाम करने में सबकत रखता था। और ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके शहर के सामने था, बैल और फूलों का हार फाटक पर लाकर लोगों के साथ कुर्बानी करना चाहता था। जब बरनबास और पौलुस रसूल ने सुना, तो अपने कपड़े फाड़कर लोगों में जा कूदे और पुकार पुकार कर कहने लगे कि लोगों, तुम ये क्या करते हो? हम भी तुम्हारे हम तबीयत इंसान हैं और तुम्हें खुशखबरी सुनाते हैं, ताकि इन बातल चीज़ों से किनारा करके उस जिंदा खुदा की तरफ फिरो जिसने आसमान और ज़मीन और समंदर और जो कुछ उनमें है पैदा किया। उसने अगले ज़माना में सब कौमों को अपनी राह चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगुनाह ना छोड़ा। चुनाचे उसने मेहरबानियाँ की और आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया और बड़ी बड़ी पैदावार के मौसम अता किए और तुम्हारे दिलों को खुराक और खुशी से भर दिया। पतरस। गर्ज सब के सब यक दिल और हमदर्द हो, बरादराना मोहब्बत रखो, नरम दिल और फिरौतन बनो, बदी के इवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए, सुलह का तालिब हो और उसकी कोशिश में रहे, क्योंकि खुदावंद की नज़र रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं। मसीह को खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे, उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हिल्म और खौफ के साथ। रोमियो। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूह कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। याकूब। देखो, सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। इंसान खुदा की हस्ती का ज़हूर है। खुदा तमाम चीज़ों को अपनी छवि पर बनाता है। जिंदगी वजूदियत से, सच रास्ती से, खुदा नेकी से मुनक्स होता है, जो खुद की सलामती और इस्तक़लाल अनायत करते हैं। इंसान उसकी छवि पर खल्क किए जाने से पूरी ज़मीन पर खुदा की हाकमियत की अक्कासी करता है और मलकियत रखता है। आदमी और औरत बतौर हमेशा के लिए खुदा के साथ अब्दी और हम असर जलाली खूबी में लामहदूद मादर पिदर खुदा की अक्कासी करते हैं। इंसान मादा नहीं है, वो दिमाग, खून, हड्डियों और दीगर मादी अनासर से नहीं बनाया गया। कलाम पाक हमें इस बात से आगाह करता है कि इंसान खुदा की शबीह और सूरत पर खल्क किया गया है। ये मादे की शबीह नहीं है, रूह की शबीह इस कदर गैर रूहानी नहीं हो सकती। इंसान रूहानी और कामिल है, और चूंकि वो रूहानी और कामिल है, इसलिए उसे क्रिश्चियन साइंस में ऐसा ही समझा जाना चाहिए।
मादा इस अब्दी हकीकत को तब्दील नहीं कर सकता कि इंसान इसलिए मौजूद है क्योंकि खुदा मौजूद है। यसू ने यह तालीम कभी नहीं दी कि अद्वियात, खुराक, हवा और वर्जिश इंसान को सेहतमंद रखते हैं या उनसे इंसानी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। ना ही उसने इन गलतियों को अपने अमल से बयान किया। उसने इंसान को हमआहंगी का अक्ल के साथ हवाला दिया, ना कि मादे के साथ, और कभी भी खुदा के फरमान को गैर मौसर नहीं बनाया। जिसने गुनाह, बीमारी और मौत की खुदा की तरफ से हलाकत पर मोहर की। ये मादी फहम की चीज़ों की बुनियाद पर कायम जहालत और झूठा अकीदा है जो रूहानी खूबसूरती और अच्छाई को छुपाता है। इसे समझते हुए पौलुस ने कहा, खुदा की मोहब्बत से हमको ना मौत, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक जुदा कर सकेगी। ये क्रिश्चियन साइंस का अकीदा है कि इलाही मोहब्बत अपने इजहार या मौजू से आरी नहीं हो सकती, कि खुशी गम में तब्दील नहीं हो सकती क्योंकि गमी खुशी की मालिक नहीं है, कि अच्छाई बदी को कभी पैदा नहीं कर सकती, कि मादा कभी अक्ल को पैदा नहीं कर सकता, ना ही जिंदगी कभी मौत का नतीजा मौत हो सकती है। कामिल इंसान खुदा यानी अपने कामिल असूल के मातहत गुनाह से पाक और अब्दी है। हमआहंगी खुद के असूल के वसीला पैदा होती है, इसके वसीला कंट्रोल होती और इसमें कायम रहती है। इलाही असूल इंसान की ज़िंदगी है, इसलिए इंसान की खुशी जिस्मानी फ़हम के ख़ात्मे में नहीं, सच्चाई को गलती से आलूदा नहीं किया जाता। इंसान में हमआहंगी मौसीकी की तरह खूबसूरत और मुखालफत गैर फितरी और गैर हकीकी होती है। खुशी रूहानी है जो सच्चाई और मोहब्बत से पैदा होती है। ये बेगर्ज है, इसलिए ये तन्हा मौजूद नहीं हो सकती, बल्कि ये सब इंसानों में बंटने का मुतालबा करती है। क्रिश्चियन साइंस इंसान की ख्वाहिशात का मालिक बनने, शफकत के साथ नफरत को एक तातुल में रोकने, पाकीज़गी के साथ शहवत पर, खैरात के साथ बदले पर फतह पाने और ईमान के साथ फरेब पर काबू पाने का हुक्म देती है। अगर आप सेहत, खुशी और कामयाबी के खिलाफ साजिशियों की एक फौज नहीं लाना चाहते तो इन गलतियों को इब्तदाई मराहल में ही तलफ कर दें। किसी शख्स के जेवरात हस्ती की उन दिलकशियों के सामने नहायत कमतर मुतबादल हैं जो कई अदवार और दहाइयों से शानदार अंदाज में चमक रही हैं। खूबसूरती की तरकीब कि ये कम भरम और ज़्यादा रूह में शामिल हो, ताकि बदन में खुशी या दर्द के यकीन से पीछे हटकर रूहानी हमआहंगी की जलाली और पुरस्कुन नाकाबिले तकसीम आज़ादी में बदल जाए। मोहब्बत खूबसूरती से कभी आंख नहीं चुराती, इसका नूरानी हल्का इसके मकसद पर मरकूज रहता है। कोई शख्स हैरान होता है कि एक दोस्त कभी कम खूबसूरत दिखाई नहीं दे सकता। जवान उम्री और बलूगत के अयाम में मर्दों और औरतों को तारीकी या उदासी में नाकाम होने की बजाय सेहत और फानियत में बालिग होना चाहिए। लाफानी अक्ल सोच की खूबसूरत तस्वीरें मुहैया करते हुए और फहम के उन दुश्मनों को फना करते हुए जो हर रोज़ इसे कब्र के करीब ले जाते हैं, बदन को माफुकुल फितरी ताजगी और हुस्न की खुराक देती है। जो कुछ झूले और कब्र के माबैन देखा जाता है, अगर हमें उसमें हमारे तमाम तर इंसानी ख्यालत को अख्ज़ करना हो तो खुशी और अच्छाई के लिए इंसान में पायदार जगह नहीं होगी और उसका मांस छीन लेंगे। मगर पौलुस लिखता है, क्योंकि ज़िंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यसू में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। जान में लामुतनाही वसाइल हैं जिनसे इंसान को बरकत देना होती है और खुशी मज़ीद आसानी से हासिल की जाती है और हमारे कब्ज़ा में मज़ीद महफूज रहेगी अगर जान में तलाश की जाएगी। सिर्फ बुलंद लुत्फ़ ही लाफानी इंसान के नकूश को तसल्ली बख्श बना सकते हैं। हम ज़ाती फ़हम की हदूद में खुशी को महदूद नहीं कर सकते। हवास कोई हकीकी लुत्फ़ अता नहीं करते। इंसानी हमदर्दियों में अच्छाई को बदी पर और जानवर पर रूहानी को गलबा पाना चाहिए, वगरना खुशी कभी फतहमंद नहीं होगी। इस आसमानी हालत का हसूल हमारी नस्ल को तरक्की देगा
जुर्म को तल्फ करेगा और उमंग को बुलंद मकासद अनायत करेगा। गुनाह की हर वादी सरबुलंद की जानी चाहिए और खुदगर्जी का हर पहाड़ नीचा करना चाहिए, ताकि साइंस में हमारे खुदा की राह हमवार की जा सके। हस्ती की साइंस का इल्म इंसान की काबिलियत के फन और इम्कानात को फ़रोग देता है। फ़ानी लोगों को बुलंद और वसी रियासत तक रसाई देते हुए ये सोच के माहौल को बढ़ाता है। ये सोचने वाले को उसके इदराक और बसीरत की मुकामी हवा में परवान चढ़ाता है। एक बड़ी रूहानी हकीकत सामने लाई जानी चाहिए कि इंसान कामिल और लाफानी होगा नहीं, बल्कि है। हमें वजूदियत के शाऊर को हमेशा कायम रखना चाहिए और जल्द या बदीर मसीह और क्रिश्चियन साइंस के वसीला गुनाह और मौत पर हाकिम होना चाहिए। जब मादी अकायद को तर्क किया जाता है और हस्ती के गैर फ़ानी हक़ाइक़ को कबूल कर लिया जाता है, तो इंसान की लाफानियत की शहादत मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। बेगुनाह खुशी, जिंदगी की कामिल हमआहंगी और लाफानियत एक भी जिस्मानी तस्कीन या दर्द के बिना लामहदूद इलाही खूबसूरती और अच्छाई की मलकियत रखते हुए असली और लाजवाल इंसान तश्कील देती है, जिसका वजूद रूहानी होता है। वजूदियत की ये हालत साइंसी है और बरकरार है, यानी ऐसी कामलियत जो महज उन लोगों के लिए काबिल फ़हम है जिन्हें इलाही साइंस में मसीह की हतमी समझ है। अब मैं मेरी बेकर डैडी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक़, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महजाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से, हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरी आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशन गोइयों, मुनसफियों, मज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के ख़िलाफ़ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने क़ायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।